योगा वाला जो सेशन था जून में जो हमने इंटरनेशनल योगा वेबिनार किया, मैम इट इज लाइव नाउ, सो लेट्स नॉट कंटिन्यू आवर पर्सनल टॉक्स नाउ. शुरू करते हैं. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम. सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यः त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते. A very good morning to all of you. Myself, जैसा कि आप जानते ही हैं, डॉक्टर अपर्णा धीर खंडेलवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम INATS. I am the moderator of this event and I welcome you all. और नवरात्रों के इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. Shresh Kala Sangam, in collaboration with Hansraj College, University of Delhi, presents Yoga from Home lecture series and yoga from on the occasion of 151st birth anniversary of Mahatma Gandhi ji. You all know that these lecture series are part of the 15 days yoga camp. So today, on 5th October, we have inaugurated our 15 days yoga camp and in which we had yoga from home lecture series that are specially designed in a way to have deeper understanding on yoga. Today we are here for the valedictory ceremony of the same. हम पिछले 15 दिन से एक साथ जुड़े हुए हैं योगा कैंप के लिए. That was totally free and today और बीच में हमने योगा फ्रॉम होम लेक्चर सीरीज भी की और आज इस प्रोग्राम का वैलिडिक्टरी सेशन है और जो हमारा ये कैंप चला 15 दिन. So moving ahead, let us know about the brief intro of both the collaborating institutes. Shresh Kala Sangam is located in New Delhi. It is registered and the society is dedicated to the promotion of Indian classical dance, music, art, culture, literature and yoga through various performances, teaching, conducting workshops, lecture demonstrations, seminar, live performances, webinar, conferences by nurturing the inner potential of the individual, artistic collaboration and experimentation. It considers these attributes as an ocean which has infinite things to explore inside. It also believes one can only reach to bring out the beauty of it when one assiduously considers it as a daily ritual or routine, a place where an individual gets to experience self-realization that helps them to develop great self-esteem and a deeper sense of self-worth by focusing on self-improvement, which will lead to cherishing oneself without any judgment and comparison. As you all are aware now, that founder president of Shresh Kala Sangam is Miss Mehak Chawla ji. She is a Bharatnatyam and Chow dancer and a choreographer from Delhi. And there are many other eminent scholars also, like Chief Patroness Shri Margi Madhu ji, eminent scholar and Kuriatam dancer and choreographer from Kerala. Chairperson organizing committee is Dr. Baldevanand Sagar ji. He is a well-known writer and visiting faculty of National School of Drama. And there are many other scholars too associated with this organization. And aims and objectives of Shresh Kala Sangam are to promote art and culture through various outreach programs, to provide a forum for a creative dialogue and creating opportunities through performances and various seminars and workshops, identifying excellence and potential in the arts and offering avenues of encouragement. Now, let us know about our collaborating institute, that is Hansraj College, which is a premier institution with highly qualified academicians and imparting education in different fields. The college today enjoys a reputation for outstanding performances in academics, sports, extracurricular activities, and it is rated top 10 colleges of the country in the field of science, commerce, and arts. The college ensures complete or holistic development of body, mind, and soul through ensuring traditional Indian values in each of its students. And it was founded by DAV College Managing Committee on July 26, 1948 in the sacred memory of Mahatma Hansraj ji, a pioneer in the field of education. Today, it is the leading college in all the DAV family of over 700 institutions. More than 5,000 students are on its roll.
And the college has made a significant and unparalleled contribution to society in terms of producing numerous dignitaries, scholars, intellectuals, sportspersons who serve different domains, not only in our own country, but at international levels. And over the years, college has built up an impressive infrastructure, whether it is in the name of amphitheater with good sound systems and all, or central library, departmental libraries, computer labs, science labs, sports facility, and the only shooting range in the university. And it has its own hostel and a placement cell, and banking facilities are also there, and it provides book bank and scholarships to the needy students. As the stream of talent flows from this college to the world, join us to create and discover a new world. लास्ट 15 डेज हमारे बहुत ही जो हमारे साथ जुड़े हैं और जो जिन्होंने योगाभ्यास किया है वो समझ सकते हैं कि हाउ बेनिफिशियल इट वाज द प्रोग्राम, हाउ बेनिफिशियल इट इज फॉर देम. सो बट मूविंग अहेड, मैं थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी व्हाट वी हैव डन इन लास्ट 15 days. So, as you all know, that on 5th October, we had an inaugural ceremony in which we had distinguished guests were Dr. Baldevanand Sagar ji was the chief guest of the program, and welcome address was given by Professor Rama ji. She is an educationist and writer, as you all know. And on 10th October, then we have our first lecture series with Ms. Shanki Kumar ji. She is a psychologist with Dr. B.L. Kapoor Hospital, and she talked about stress management and mental well-being. On 11th October, we had another lecture series with Dr. Nishi Arora ji. She is associate professor at Tibia College and Hospital, Delhi. She talked about exploring Ayurvedic knowledge on food and health. On 17th October, we had our third lecture series with Yogi Siddharth ji, and he is an international yoga exponent from Delhi. He talked about essentials of yoga tradition and philosophy. On 18th October, we had our fourth lecture series and in which welcome address was given by Dr. Baldevanand Sagar ji, and speaker was Yogi Siddharth ji, who was accompanied by flutist Shri Shubhradeep Paul ji, and the topic was Rag Yoga. So it was again a very fruitful. All these lectures were very fruitful. If you can want to take a look, you can have a look on our videos at our Facebook pages. And these lectures were really beneficial. And again, as you all have done exercises also. So the complete, जो मुझे लगता है कि 15 दिन में जो complete ये रहा होगा योगा का कैंप विद लेक्चर सीरीज, एक बहुत ही आपको नटशेल में योगा क्या है वो बताने का प्रयास यहाँ किया गया. Now it's time to introduce our distinguished guest. Today we have with us for the valedictory ceremony. Our chief guest is H. Lucy Guest जी, जिनको आप साध्वी दिव्यप्रभा नाम से भी जानते हैं. She is an international yoga exponent from England. और हमारी आज की गेस्ट ऑफ ऑनर है डॉक्टर तपस्विनी प्रधान जी. शी इज सीनियर कंसल्टेंट हेड एंड नेक ऑन्को सर्जरी फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली. वेलकम एड्रेस के लिए प्रोफेसर रमा जी हैं, writer and principal Hansraj College, University of Delhi, but maybe due to some reasons she may not be available. Let us we can see that. For the welcome address, प्रोफेसर रमा जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी. आप सब बहुत अच्छे से मैडम के परिचय से परिचित भी हैं. मैडम प्रिंसिपल हैं हंसराज कॉलेज की, और मैम एक वेल नोन स्कॉलर हैं हिंदी लिटरेचर एंड मीडिया की. उन्होंने 3 डजन से ज्यादा किताबें हिंदी जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड सिनेमा एंड एजुकेशन के बारे में लिखी हैं. एंड उनके जो प्रिंसिपल्स हैं किताबों के, और वैसे भी उनके लाइफ के प्रिंसिपल्स आर डेडिकेटेड टू इंडियन कल्चर एंड नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी. अपने टेन्योर के दौरान प्रोफेसर रमा जी ने इन लास्ट 3 डेकेड्स में उन्होंने स्टूडेंट फ्रेंडली बुक्स बनाई जो कि हिंदी पोइट्री, फिक्शन, जर्नलिज्म, सिनेमा एंड एजुकेशन से रिलेटेड हैं. और उन्होंने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज भी कराए. ऑल इंडिया डिबेट कंपटीशन जो उनका बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा 2001 से 2011 तक, वो दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट. एंड बहुत ही प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ मैम हमेशा जुड़ी रही हैं. ऑल इंडिया रेडियो एंड आकाशवाणी, दूरदर्शन, हिंदुस्तान जनसत्ता, एंड टू नेम अ फ्यू.
उसके अलावा मैम बहुत से अवार्ड से भी सम्मानित हैं, जैसे कि विद्या रत्न सम्मान, महादेवी वर्मा साहित्य सम्मान, साहित्य भारती सम्मान, बेस्ट टीचर अवार्ड, शक्ति अचीवमेंट अवार्ड, फीमेल जर्नलिज्म अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड इन हिंदी। सो हम मैम का वेलकम करते हैं और आई होप मैम अगर हमें ज्वाइन करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अभी क्योंकि आजकल एडमिशन प्रोसेस है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की दैट इज बहुत ऑलरेडी हम लोग लेट हैं कोरोना की वजह से, तो आई अंडरस्टैंड कि मैम अपना टाइम हमें दे, दिल से हमें अपने साथ अपना वेलकम मतलब मैम देना भी चाह रही हैं, लेकिन यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। मैं आज के प्रोग्राम के विषय में आगे अपने स्पीकर्स को इनवाइट करने से पहले एक बात ये कहना चाहूंगी, जिस तरह नवरात्र है चल रहा है और नवरात्र के रूप में जब मेरे सामने कल ये मैं पोस्टर देख रही थी, तो कहीं ना कहीं मुझे पोस्टर देख के जो त्रिशक्ति या नारी शक्ति की अगर हम बात करें तो वैसी अनुभूति हो रही थी, तो उसी के कारण एक मन में एक बहुत अच्छा फीलिंग हो रही थी कि जिस तरह वैलेडिक्टरी जो हो रहा है और नवरात्र के अवसर पर हो रहा है, तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारी जो आज की चीफ गेस्ट हैं, उनके बारे में मैं छोटा सा ब्रीफ इंट्रो देना चाहूंगी। एच लूसी गेस्ट जी और साध्वी दिव्य प्रभा जी, born in UK. She did her first BA and MA from Oxford University and worked for top American investment banks until 1999. She then was divinely inspired by Swami Vijayanand Dev Ji in the UK and received Diksha from Ram Rishi Vishwa Atma Bhavra Ji. She then came in 2000 to live and study at his ashram in the Shivalik Hills. After his samadhi, Swami Yoganand continued to teach her yoga, philosophy, and Sanskrit. She was sent to Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya, Varanasi in 2006, where she has studied Sanskrit in the traditional way, completing Prachin Vyakaran Shastri, that is BA, and Prachin Vyakaran Acharya, that is MA, and is currently finishing her PhD in Asian grammar. She won the Shastri Gold Medal in 2011. She is former vice chairman of the World Organization of Students and Youth. She has taught yoga in India and abroad for the last 20 years and also lectures and teaches at various conferences, workshops, and retreats internationally. Additionally, she also teaches Sanskrit and has co-founded a free school and Gurukul in Varanasi called International Chandramauli Charitable Trust. We are protecting and promoting yoga, Sanatan Dharan, and Bharati Sanskriti with the yoga, Vedas, and other Shastras are taught as a way of life. Education is provided to underprivileged and orphaned children in 3 projects, that is residential, nursery and primary school, and evening school. 90% of the staff and teachers are women, and a women's empowerment project has been started with this sewing center. We welcome you, ma'am, for your address. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणाम विद्वत्गण, गुरुगण, मैं आपको सदा प्रणाम करती हूँ और सारे स्टूडेंट्स को, आचार्य को और मेरे भाइयों बहनों को और मेरी प्रिय आत्मा को प्रणाम। मैंने आपके लिए एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करवाए थे। अगर आपका अनुमति होगा तो मैं इसको शेयर कर देती हूँ आपके लिए। जी मैम, जरूर। तो सभी लोग को जानते हैं कि योगा जीवन में करने से लाभ हो जाते हैं, लेकिन ये केवल एक करने वाली नई चीज नहीं है, जैसे आधा घंटे के लिए किए, 1 घंटे किए या 2 घंटे किए हैं। ये एक जीवन पद्धति है जिससे अपने जीवन में पूरा लाभ हो जाएगा, जैसे आपका सुख शांति पा जाएंगे। और इस प्रेजेंटेशन में मैं कोशिश करूंगी कि आपको समझाना कैसे कैसे हो जाती है और कैसे कैसे करना है। अगर मेरी हिंदी थोड़ा सा अशुद्ध हो जाएगा, मैं पहले आपसे क्षमा मांगती हूँ
कि यदा कदा कुछ अशुद्ध तो हो जाएगा, तो कृपया माफ कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग किस लिए जीते हैं, जीवन क्या है। क्योंकि संदेह हो सकते हैं, हम लोग संदिग्ध होते हैं कभी कभी कि हम किस लिए है, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पूरा बड़ा बड़ा तस्वीर समझना चाहिए, उस जीवन का चित्रकला क्या है। तो ये उपनिषद में हमको बताया गया है कि हमारे जीवन एक नदी जैसे हैं जो दो तट के बीच बीच में बहते हैं। एक बाई तट है और एक दाहिना तट है, और जो बाई वाले है वो जन्म है, और जो दाहिने वाले है वो मृत्यु है। और इसके बीच में हमारी जीवन चलते रहते हैं नदी जैसे। और मंडूक्य उपनिषद में ऐसे बोला, यथा नद्या संगमः समुद्रस्थं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् रूपात् विमुक्तः भारत परम पुरुषम पेति दिव्यम। अर्थात कि जैसे नदियां बहते हैं और अंतिम समुद्र में पहुंचते हैं, जब नदी समुद्र में पहुंचते हैं, आप बता नहीं सकते हैं कि ये समुद्र के किस अंश किस नदी से आया है। इसी प्रकार जब हम लोग अपने परम आत्मा में लीन हो जाते हैं, ये हमारे कोई नाम नहीं है, मेरे कोई रूप नहीं है, ये सब लीन हो जाते हैं अपने मूल स्वरूप में, मतलब परम ब्रह्मा, परम आत्मा। तो एक बड़ी प्रश्न है, अगर ऐसे होते हैं कैसे हम लोग जान सकते हैं, इसमें क्या प्रक्रिया है। तो उपनिषद में बोला था, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विच्छेषति तम आह परमात् गतिम। तो जब हमारी इंद्रियों और जो मन जोड़े हैं ये अंदर मोड़ते हैं, तो हमारी बुद्धि में कोई कर्तव्य और कर्म नहीं है, और ये अंतिम में होते हैं ध्यान में, तो हम लोग वही पहुंचना है। तो अगली प्रश्न है, मेरी साधन क्या है ऐसी स्थिति में पहुंचने के लिए। तो अथर्ववेद ने बताया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो हमारे अंदर है ये पूरे ब्रह्मांड में है। और हमारे अंदर क्या है, कहा गया है अष्ट चक्र नाव द्वारा देवनाम पूरी योध्या। मतलब जो हमारी पिंड है उसका नाम है अयोध्या। अयोध्या मैंने ना योध्या, अयोध्या जिसमें कोई युद्ध नहीं है, और इसमें सारी देवताओं बसते हैं, रहते हैं अंदर। और इसमें क्या क्या है, कहते हैं अष्ट चक्र। हमारे शरीर में नीचे से ऊपर तक 8 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, ललाना। अधिकतर लोग ललाना के बारे में नहीं बताते हैं, और यहाँ हमारे मन रहते हैं। फिर आज्ञा, आजना और ब्रह्म चक्र। तो ये 8 चक्र हैं, और ये हमारी यात्रा है, नीचे से ऊपर जाना है, एक एक चक्र को पार करते हुए ब्रह्म चक्र तक पहुंचना है। और हमारे 9 द्वारा है, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह और 2 नीचे रास्ते हैं। तो हमारी शक्ति उन 9 दरवाजे से निकलते हैं, तो हम लोग साधना के द्वारा उनको बंद करवाना है। उपनिषद भी बताते हैं कि 2 और दरवाजा हैं। एक है हमारे 90 जो जन्म काल में बंद हो जाते हैं, और जो 11 वाला है ये हमारी ब्रह्म चक्र के एक दरवाजा है। जब हम लोग साधना करते हैं ये दोबारा खुल जाते हैं, जानवर पर खुला है लेकिन फिर वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, और साधना के द्वारा से हम लोग फिर दोबारा उसको खुलवाते हैं।
तो ये हम लोग को करना है। और कैसे करेंगे? योग के द्वारा। तो योग क्या है? पाणिनि धातु पाठ में हम लोग को 2 लक्षण मिलते हैं, युजंग समाधो युजिर योगे। युजंग समाधो मैंने समाधि अर्थ में योग शब्द प्रयुक्त है। और समाधि का क्या अर्थ है? जो संस्कृत व्याकरण छात्र हैं वो समझ सकते हैं, सम उपसर्ग है और धी। तो सम धी, धी माने बुद्धि, हमारी बुद्धि सम बराबर स्थिर। तो योग शब्द के अर्थ है स्थिर बुद्धि, प्रज्ञा भी कहते हैं। और दूसरा क्या है? युजिर योगे। योग शब्द भी प्रयुक्त है जोड़ना अर्थ में। किस चीज से जोड़ना? अपने से, कोई बाहर चीज से नहीं, आप अपने से जोड़ना है। आप अपने को पहचाना है, और जब अपने को पहचानते हैं तब आप जानेंगे कि आपका असली स्वरूप और विरूप क्या है और निरूप भी क्या है। और भी इससे क्या होगा? आप जानेंगे कि सभी लोग क्या है। तब आप दूसरे लोग को समझेंगे, आप समझेंगे अपनी कर्तव्य, आप समझेंगे अपनी धर्म, और आप भी समझेंगे कैसे सुख शांति पाएंगे। पतंजलि भी एक और नियम दिए हैं, योगस चित्त वृत्ति निरोध। निरोध क्या है? निरोध, रुद, नि विहाय, है ना? जो शेष नहीं है, जो कुछ शेष नहीं है, कुछ सीम नहीं है, और सब एकदम पूर्ण है। और अपने साधन क्या है? योगा करना है, और योगा करने से अपनी चित्ता और वृत्ति निरोध हो जाएगा, जिसमें कोई शेष नहीं है। और आप भी देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं राजा योग करते हूँ, मैं हठ योग करती हूँ, मैं अष्टांग योग करती हूँ, मैं क्रिया योग करती हूँ, विन्यास करती हूँ। लेकिन ये क्या क्या है? हम लोग को शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रकार हम लोग साधना करना है, अपनी अभ्यास करना है। अभ्यास और अज्ञाभ्याम तन्निरोध कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम भी पता होना चाहिए कि हजारों वर्षों से शास्त्रों क्या बताते हैं, क्योंकि योग में कभी कोई नया चीज नहीं है। क्यों? वो 10,000 वर्ष चल रहे हैं, और जितना नवीन था 10,000 वर्ष पूर्व, इतने नवीन भी लगते हैं आज, क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज है। ये आज आप जीवन में लगाओगे, आप ऐसे सुख शांति और विद्या सच्चिदानंद पाओगे जैसे ऋषि मुनिया ने पाए थे 10,000 पूर्व। तो ये करने वाली चीज है, और ये बहुत जरूरत है कि हम लोग भी क्या बताए गए हैं शास्त्रों में, जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो पतंजलि ने बताया तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, मतलब तप स्वाध्याय। और स्वाध्याय की केवल अर्थ नहीं है कि खुद ही ग्रंथ पढ़िए, खुद ही शास्त्र पढ़िए, नहीं। स्वाध्याय मैंने आपने को पहचानो। ये एक और भी शब्द है इसी प्रकार जो स्व से शुरू थे, स्वस्थ। स्वस्थ नहीं कि अर्थ नहीं है डॉक्टर के पास जाओ ठीक हो जाओ। स्वस्थ मैंने स्वतिष्ठति थी, स्वस्थ आपने में स्थित रहते हुए आप स्वस्थ हो जाते हैं। डॉक्टर भी जरूरत है, लेकिन भी अगर आप अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते हैं, जितना डॉक्टर आपको हेल्प करेंगे ये फिर भी पूरा सफल नहीं हो सकते हैं। आपको खुद ही स्थिर होना है, अपने में स्थिर होना है, और आपने खुद को पहचानना चाहिए। और एक तीसरा पद क्या है? ईश्वर प्रणिधाना। आपने परम आत्मा में
अपने अंदर में लीन होना, क्योंकि आपसे अलग नहीं है। जिस प्रकार समुद्र है और उसके ऊपर लहर चलते हैं, तो लहर समझते हैं कि मैं लहर हूँ, मैं समुद्र से अलग है, नीचे समुद्र है और ऊपर मैं लहर हूँ। इसी प्रकार हम लोग सोचते हैं कि मैं कुछ हूँ, मैं, मेरे गुण है, मेरी तत्व है, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पा हूँ, पिता हूँ, मैं परिवार हूँ, मैं कोई देश की हूँ, या मैं कोई गांव की हूँ। लेकिन असल में आप समुद्र जैसे हैं। आपकी असली रूप ही परमात्मा है। आप अलग नहीं है। केवल अपने मन के द्वारा हम सोचते हैं कि हम अलग हैं। तो हम लोग भी तप करना है, स्वाध्याय करना है और अपने भगवान पर आधार और श्राद्ध करना है, और ये भी सत्य बुद्धि के द्वारा। अष्टांग योग भी शब्द बहुत प्रचलित है और ये बहुत सरल चीज है, इसमें कोई कठिन नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये अष्ट अंग है। तो इनमें एक एक शब्द में आपको नहीं समझाऊंगी, क्योंकि आप लोग हिंदी को जानते हैं, इसमें भी कुछ लोग जो संस्कृत भी जानते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, अंतिम में वो शब्द फिर आया है, समाधि, समबुद्धि, स्थिर बुद्धि, अर्थात यम और नियम पालन करने से, आसन करने से, प्राणायाम करने से, प्रत्याहार करने से और जो अंतरंग धारणा, ध्यान, समाधि करने से समाधि ही पाएंगे। ये बहुत वैज्ञानिक चीज है। मैं सबसे पहले बचपन में इंजीनियरिंग के अध्ययन भी किए हैं। मैंने बहुत वैज्ञानिक द्वारा अध्ययन किए हूँ और मैंने भी देखा है जो योग साधना है ये एकदम वैज्ञानिक है। ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे फल मिलेंगे, ये निश्चित है। कब मिलेंगे ये आपके ऊपर है। जितना आप जल्दी चाहते हैं, जितना आप जल्दी पहुंचेंगे। अगर आपको थोड़ा थोड़ा करेंगे तभी भी किसी समय पर पहुंच जाएंगे। किस जन्म में कोई नहीं बता सकते हैं, ये आपके कर्म के अनुसार। लेकिन एक चीज निश्चित है, पालित होगा। मेरे गुरु जी ब्रह्म श्री विश्वात्मा बावरा जी कहते थे कि जैसे अगर हम काशी से दिल्ली जाना है और मैं अपनी 4 पैर से जा रही हूँ, अगर मेरे 4 पैर खराब हुआ था इलाहाबाद में, प्रयागराज में, फिर वहां से मैं थोड़ी वापिस जाऊंगी काशी और नया गाड़ी ले लेंगे। मैं प्रयागराज में नया गाड़ी की सुविधा करेंगे और वहीं से आगे चलते रहेंगे और कभी हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार अगर हम एक स्तर पर पहुंचते हैं और मेरे शरीर पूरा हो जाते हैं, तब मैं अगले जन्म में जब योग साधना दोबारा शुरू करेंगे, योग अभ्यास दोबारा शुरू करेंगे, वही से चालू होगा। इसलिए आप देखोगे जैसे पढ़ाई में लोग अलग अलग स्तर पर है, जितना पढ़ाई गए हैं वही से आप शुरू करते हैं। और वो योग में भी इसी प्रकार है कि जन्म जन्म आपके साथ साथ ये विद्या जाएगा। जैसे 1-2 चक्र पा किए हैं, वही से आपका अंतरिक्ष जन्म वही से शुरू होते हैं। तो ये कभी कोई व्यर्थ नहीं है। जो जितने भी व्रत है, अगर आज शुरू करेंगे तभी उसका लाभ होगा होगा होगा। ये बस करते रहना है। हठ योग भी जो संस्कृत छात्र है समझ सकते हैं कि हठ शब्द, मैं देख रही हूँ कि इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल है। हठ शब्द हम और तम समाहार द्वंद्व है, मतलब उभय अर्थ प्रदानम, ये बराबर अर्थ में है। हम और तम मतलब प्राण और अपान, राजगुण, तमगुण, सूर्य, चंद्रमा, गर्म,
टंड। तो जब हम प्राण और पान को सम करते हैं तब ये दोनों बराबर होने से वही ध्यान ही शुरू हो जाते हैं। आप केवल अंदर जा सकते इस स्तर पे और कोई काम नहीं हो सकते हैं। तो जब वो छोड़ेंगे ये हठ कहते हैं, और हठ होने से प्राणायाम के द्वारा अपने आप प्रत्याहार हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या है? संख्य योग कहते हैं 3 प्रकार का दुख है, और मैं समय को देख रहा हूँ तो क्षमा कीजिए, मैं और जल्दी चलूंगी अभी, जैसे आपका प्रोग्राम समय पर हो जाएगा। तो 3 प्रकार के दुख है, और हम लोग योग करने से उन तीनों दुख से मुक्त होना है। तो प्रॉब्लम्स क्या है, कारण क्या है? तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध कहते थे, वृत्तेय पांचतेय क्लिष्ट क्लिष्ट। ध्यान दीजिए, क्लिष्ट अक्लिष्ट, अक्लिष्ट मैंने न क्लिष्ट अक्लिष्ट, मतलब जो 5 वृत्तियां प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतिया, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा भी स्मृति भी, इन 5 से केवल 2 फल होने वाले हैं, एक कष्ट देते हैं और एक कष्ट अभाव देते हैं। तो हम लोग ये वृत्तियां को निवृत्त करना है, हम लोग उसको शांत करवाना है, उनसे आगे चलना है। और गीता बहुत सुंदर बताए हैं, ध्यातो विषयं पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगत् संजायते कामा, कामात् क्रोधोपजायते, क्रोधो भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रमशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रनश्यति। मतलब 7 स्तर का पतन है जीवन में, और किस स्तर से शुरू है? ध्यायतो विषयान् पुंसः, मतलब कि बाहर के विषयों पर ध्यान करने से धीरे धीरे कामनाओं पैदा होगा, और कामनाओं से क्या होगा? क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से आप भूल जाएंगे कि आप कौन हैं। इससे क्या होगा? आपकी बुद्धि नष्ट होगा, आपकी बुद्धि नष्ट होने से आपको पूरा समाप्त हो जाएंगे। तो योग के द्वारा से हम लोग उन चीजों को कंट्रोल करवाना है। और गीता ने 4 श्लोक में बताया है कि कौन किसको योगी है। मैं किस लिए ये लगाया है? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहते हैं कि गीता कोई वो एक ग्रंथ नहीं है कि रूम में रखकर उसको पूजा करके उसको प्रणाम करके कहती गीता बहुत अच्छा है। गीता आपको प्रैक्टिकल चीज भी बताएंगे। यदा संहारते चायम कोमंगनिव सावश इंद्रियाणि इंद्रियातेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये आपको बता रहे हैं 5वां अंग प्रत्याहार। ये हम लोग योग के द्वारा से क्या होगा कि कछुआ जैसे अपनी इंद्रियों अंदर रख सकते हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है। और कैसे ये सब करना है, कैसे पहुंचेंगे इस स्थिति में? जैसे हमारी इंद्रियों अपने बस में रहेंगे और हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगा। आसना करना है। आप लोग 15 दिन से आसना भी कर रहे थे, आप लोग भी ध्यान भी कर रहे थे, और भी आप कोई बहुत सुंदर प्रवचन और वर्कशॉप्स कर रहे थे। तो सबसे पहले स्थिर सुखम आसनम, अपने आसन स्थिर होना चाहिए। जब आपकी आसन स्थिर हो जाएगा तब आप प्राणायाम के द्वारा प्राण को स्थिर कर सकते हैं, क्योंकि प्राण और विचार एक साथ होते हैं। अगर अपनी प्राण कंट्रोल कर सकते हैं फिर अपने विचार को कंट्रोल हो जाएगा अपने आप। और फिर क्या करना है? धारणा, ध्यान, समाधि जो एक साथ चलते हैं। तो इसमें क्या करना है? एक बिंदु पर ध्यान करना है। धारणा, ध्यान, उसको बार बार करना है, और इससे क्या होगा? इस बिंदु को ध्यान करने से इस बिंदु पर लीन हो जाएगा। तो
3 प्रकार आप ये कर सकते हैं। पहले कल्पना करना है कि आप ये मंत्र लिख रहे हैं। कौन से मंत्र बताएंगे? अगर ये सरल है तो आप उसको ध्वनि को सुन सकते हैं, और अगर ये सरल है तो उसको ध्वनि के साथ साथ उस मंत्र का अर्थ भी विचार कर सकते हैं। तो अपने आप मंत्र पर ध्यान करने से उसको ध्वनि आ जाएगा, उसका अर्थ भी अपने आप आ जाएगा। और अगर आपके पास कोई विशेष मंत्र नहीं है, सबसे सरल है ओम। ओम एक उद्गीत शब्द है जो सामवेद में वर्णित है और मांडुक्य उपनिषद में बहुत विस्तार प्रकार वर्णित है। लेकिन इसमें 3 अक्षर पर समझना है। अ कंस्थल, उ ओष्ट और म केवल म नहीं है, अंग। और ये अपने आप ऊपर ले जाने शब्द है। तो ये केवल करना अपने आप अंदर ऊपर जाएंगे। ये भी वैज्ञानिक चीज है जो ऋषियों मुनियों ने उसका अनुसंधान किया है। तो जीवन में हम लोग कैसे करना है? मैंने आपको बताया है कि योग करना है, आसन प्राणायाम और अपने आप प्रत्याहार हो जाएगा और ध्यान करना है। भी आप समझना है कि आपका प्राण अमूल्य कीमत है। एक दिन में 1,600 श्वास हम लोग लेते हैं, मतलब 1 घंटे में 900, और आप एक भी सांस खरीद नहीं सकते हैं। इतना महंगी है कि जितना भी धन है आपके पास, आप एक प्राण खरीद नहीं सकते। इसलिए दिन में हमेशा होश रहना है कि आप क्या कर रहे हैं, किस लिए। इससे उत्थान हो जाएगा या पतन हो जाएगा। हमेशा परमात्मा से अंदर जोड़ना है। कल्पना करना है कि हर चीज परमात्मा से प्रचलित है, और जो भी आप पाएंगे जीवन में, ये भगवान से प्रसाद ही है। जब इसी प्रकार हर चीज को स्वीकार करेंगे, आप दुख किस चीज से होगा? क्योंकि भगवान ने दिए हैं और बिना कारण नहीं दिए हैं। और समझना है कि आपके आध्यात्मिक जीवन दिन बार के लिए है, केवल जब मंदिर जाएंगे नहीं, केवल जब ध्यान में बैठेंगे के लिए नहीं, केवल जब शास्त्रों के सामने बैठेंगे नहीं। हर चीज पूजा है। जब भोजन बनाएंगे वो भी पूजा है, जब आप स्नान करेंगे ये भी पूजा है, जब आप खाना खाएंगे ये हवन है। तो जब हम लोग इसी प्रकार समझेंगे तो फिर हम लोग निश्चित पाएंगे सुख शांति, क्योंकि बिना शांति सुख नहीं आएंगे। गीता कहते थे अशांतस्य कुतः सुखम। तो हम लोग कैसे पाएंगे ये शांति? जब हमारे मन स्थिर है, और जब ये स्थिर होगा तब हम लोग पाएंगे प्रज्ञा। और ये प्रज्ञा कैसे पाएंगे? ध्यान करने से। तो ये हमारी गुरु जी का संदेश है आपके लिए। मुझे आशा है कि आप लोग कुछ मिल जाएंगे उन शब्दों से। और अभी मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। श्रेष्ठ खालसा संग्राम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि लोग इतना दिव्य कार्यक्रम करते रहते हैं। फेसबुक पर हम देते रहते हैं। मैंने देखा है कि कितना अच्छे लोग योगदान भी कर रहे हैं अपनी संस्था में। इतना सुंदर चित्रकला, कला और योग चल रहे हैं विद्वान के द्वारा। और हंसराज कॉलेज को भी धन्यवाद करते हैं कि ये लोग जोड़ते हुए ऐसे सुंदर सुंदर कार्यक्रम किए गए हैं। और जो मेरे साथ साथ अतिथि तपस्विनी शर्मा जी, आपको भी प्रणाम करती हूँ। और अध्यक्ष जी अर्पण धीर जी, आपको भी धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ आप हमको बुलाए गए हैं। आपको प्रणाम करती हूँ। हरि ओम तत्सत। प्रणाम।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो हमको हमें सबको कहना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जो ये 15 डेज का योगा कैंप प्लस जो योगा लेक्चर सीरीज चल रहा था, आपने उस संपूर्ण पूरे इस 15 डेज को अपनी एक डेप्थ नॉलेज के थ्रू, बहुत डीप नॉलेज के थ्रू आपने उसको यहाँ बताया। क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी लेक्चर्स किए हैं उसमें हमने योग को जो जीवन का जो जिस तरह की चीजें जो हम अपना सकते हैं जीवन में, एक लेमैन के रूप में भी बहुत ही उस तरह से उन्होंने थोड़ी थोड़ी चीजों को टच किया था, बट आपने उसे शास्त्रिक रूप से, मतलब हमारे टेक्स्ट क्या कहते हैं योग को, उस विषय पे आपने ज्यादातर लाइट अपना अपने व्याख्यान में रखा। और मेनली उपनिषद आपने लिए, भगवत गीता आपने ली, और काफी बहुत ही गूढ़ था, बहुत ही गंभीर था, और बहुत ही इजी था। इजी इन द सेंस आपने समझाया इतने सरलता से, जबकि लैंग्वेज वाज अगेन आपका, जैसे हिंदी इज नॉट योर मदर टंग, बट स्टिल वो इतने अच्छे से वेल कन्वेड था कि हमें, मुझे नहीं लगता कि योग सूत्र के मुश्किल सूत्र भी लोगों को लगे होंगे कि मुश्किल हैं। उन्होंने बहुत इजीली उसको आत्मसात करने की कोशिश की होगी। और जो आपने तो बिल्कुल, जो हम कहें कि एक तरह से वैलेडिक्टरी एड्रेस में जैसे हम कहें कि एकदम 3 हमें बिंदु दे दिए हैं इस पूरे 15 दिन के योग के, वो ये है कि हमें अपनी बुद्धि, स्थिर बुद्धि रखनी है, साथ में हमें अपने आप को भगवान को समर्पित करना है, उस परमात्मा को समर्पित करना है, और साथ में अपने अंदर जो अयोध्या है, जहाँ युद्ध की स्थिति ना हो, जहाँ संदेहपूर्ण स्थिति ना हो, उस तरह से अपने आप को बनाना है। तो ये 3 मुख्य रूप से बिंदु मुझे लगे आपकी प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने हमें इस व्याख्यान से लाभान्वित किया, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू मैम। नाउ मूविंग अहेड, मैं अपनी आज की गेस्ट ऑफ ऑनर को आमंत्रित आपको करना। धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर जी के लिए देना चाहूंगी। जो Dr. Tapaswini Pradhan ji is a senior consultant, head and neck oncosurgery, Fortis Hospital, as you all know. She has completed her bachelor's in medicine and surgery from Maulana Azad Medical College, New Delhi, and her master's from Lady Hardinge Medical College, New Delhi. She has been trained as a head and neck surgeon from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, and has been practicing for the past 18 years. She is currently working as senior consultant, head and neck and onco-surgery, Fortis Hospital, Shalimar Bagh. She was at the Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center and BLK Super Speciality Hospital Cancer Center as a consultant in head and neck surgery, Department of Surgical Oncology. Additionally, she was also selected for fellowship from Royal Marsden Cancer Hospital, UK. She has been trained in transoral laser from University of Geneva, Italy, transoral robotic from University of Pennsylvania, USA, and endoscopic skull-based surgeries from Pittsburgh University, USA. She is an esteemed member of various reputed organizations and has been on the Executive Council of Foundation of Head and Neck Oncology. She is a regular faculty at various national and international conferences and workshops. She has numerous articles and papers to her credit. Dr. Tapaswini ji devotes herself in training the diplomate students in surgical oncology at the institute. Besides clinical work, she has an avid interest in music and arts. She is an accomplished singer in Hindustani classical music and an award-winning painter and avid sitar player. She has been a regular voice and face of All India Radio and Delhi Doordarshan. We welcome you, ma'am. Thank you so much, Apan. Thank you so much. And it's indeed a pleasure to be back again with you all. And I was there, I think, around a couple of months ago when I spoke about the importance of yoga in the modern era, especially with respect to cancers. Because ये मेरा बहुत ही favorite topic है, which I keep on discussing because we want to create a lot of awareness among people pertaining to what cancer is and how we can prevent this particular disease. बहुत अच्छा लगा लूसी जी को सुन के. It's so wonderful that she can speak such beautiful Hindi and she can communicate and express herself. और हमें भी कभी-कभी शर्म आती है कि हम इतना अच्छा भी नहीं कभी-कभी बोल पाते हैं.
So she's beautifully touched about the importance of yoga and especially the spiritual connotation of yoga. And that's what I want to tell you. The modern medicine, though it helps us to cure the various medical ailments, but it's unable to look into the subtle dimensions of the human personality. आजकल का जो यूथ है वो क्या सोचता है, health is something like losing weight or making six packs. That's what the youth would say. But with COVID in, so much of things are happening in this pandemic. So what has taken a huge toll on the youngsters is the mental health issues. आप देखेंगे आए दूसरे तीसरे दिन everybody is trying to organize some counseling sessions, how to cope up with this particular stress. So many people have lost their jobs. बहुत depression, बहुत सारी चीजें यूथ में हो भी रही हैं और modern life की stresses भी बहुत हो रहा है. So this is where the importance of holistic medicine has come in, and yoga is an integral part of what we label as holistic medicine. And I'll tell you, and as Lucy ji has already reiterated, कि योगा के बहुत फायदे होते हैं और एक चीज तो वो होता है जिसको हम बोलते हैं spiritual awakening, and this is what is beautifully done through yoga. जब हम holistic medicine की बात करते हैं, so if we talk about holistic medicine, what all it covers the physical aspect of an individual, the mental health, the spiritual, and also the social well-being. Unfortunately, the last century saw a complete disappearance of this approach because of the Western medicine making a lot of impact. But gradually, as we realize the importance of yoga and other factors which we incorporate in holistic medicine, so yoga has been able to, it has got integrated into our medical practice. Even when we treat our cancer patients, yoga therapy is something which we also advocate, not to treat, but there are many aspects that it helps to cure, helps in the psychotherapy of the patients who are suffering from such a dreadful disease. So it actually balances between the nervous system and the endocrine system. And it is science. Yoga is science, and it's also an applied psychology. It works beautifully on the body, on the mind, on the emotions of the individual, on the intellectual aspect, and also gives a lot of bliss. So there's a lot of happiness that you experience when you do this practice. If you look at scientifically, what it does is, what does it do in the body? It harmonizes a lot of systems. Look at the digestive system or the cardiovascular system, nervous system, endocrine system. So there is a beautiful blending of the various systems. तो ये सारे जो हमारे अंग हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे डाइजेशन में, या हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, या हमारा हार्मोनल सिस्टम पे काम करते हैं, या रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करते हैं, तो योगा जो है इनको बहुत ही सुंदर रूप से इंटीग्रेट कर लेता है और बैलेंस कर देता है. So therapeutic yoga, there's something which, we use yoga also to treat certain medical conditions like hypertension. बहुत ही common बीमारी है blood pressure की बीमारी. So hypertension, asthma, दमे की शिकायत, peptic ulcers, पेट में ulcer, या nervous disorders, nervous breakdown. So जहाँ medicine पूरी तरह से काम नहीं कर पाता, incorporating yoga for the treatment of these particular ailments, what we realize is the amount of medication that we would give to our patients gets reduced with a period of time. So it's not that it directly goes and helps you get off the medicines, but it helps us to reduce the dosaging of medicines. It also helps us to avoid certain medications. So that's how yoga has also become very therapeutic in medical practice. तो ये हमारे जो हर एक अंग को जैसे अभी बताया, it helps us to tone, it helps us to balance, it tones our entire muscular system, the nervous system, and the endocrine glands, and helps us to restore the health very beautifully. अब जब कैंसर पेशेंट्स की बात आती है,
to be very honest, it doesn't cure cancer, but it alleviates a lot of patients, stress, the agony which they go through. इतना pain होता है इस सफर में, cancer के treatment में और disease से ही. So it helps us to, alleviate the patient's agony and helps the patient to cope up with stress. ये जो stress है उसको कैसे cope करते हैं. And as a result, you'll realize doing yoga from time to time, it gives a quality of life to them and also a meaning to their life. तो बहुत research भी हो चुका है. There are a lot of meta-analysis which have been done. एक बहुत बड़ा study है which has been done on breast cancer patients. And what did they find is, there is a lot of impact on their functional, on their social, and their spiritual well-being. So it helps us to improve their scores on their functional and social well-being. And the moods experienced by the patient, you'll find they get positive vibrations. Negativity उनमें कम हो जाती है, और जो hostility होता है और उनके जो moods swings होते हैं बहुत कम हो जाता है. And they are able to fight this disease with a lot of courage. And you'll find there is a lot of because of this increased positivity, even this dreadful disease which they are asked to fight, they are able to do with a lot of courage and enthusiasm. और दूसरा भी impact जो हम देखते हैं योगा का is improving the quality of sleep that you get. Most of us, because of so much of stress happening, we have so much of disturbed sleep. तो योगा जो है ये हमारे sleep की quality को भी better कर देता है, और जो sleep के लिए बहुत लोग medicines भी लेते हैं उसकी भी requirement को कम कर देता है. जो बच्चे हैं जिनको cancers है उनको भी ये योगा का practice encourage किया जाता है. उससे क्या होता है, they become very joyful, they become joyous. उनको शायद पता नहीं है कि बीमारी कैसी है, कितना खतरनाक है, but हम चाहते भी नहीं. As practitioners also, we don't want them to know what is the gravity of the situation. We all want them to be happy. So ये happiness और positivity और optimism से क्या होता है, body की जो machinery है, that gets geared up. और वो खुद बहुत सी चीजें कर देता है जो आपको भी नहीं पता चलता है. So yoga is another way to enhance all this, So you make the child more active, they become more mobile, they become more joyous, and that helps them to fight this particular disease. तो अंत में मैं ये कहूँगी कि it's a very inexpensive method, very priceless method. इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई ज़रूरत नहीं है. आप घर में बैठ के कर सकते हैं, आप पार्क में जाके कर सकते हैं, आपको कोई जिम वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है. So you don't have to spend on all this. So it's a priceless, very inexpensive, doesn't require any infrastructure और कोई maintenance की भी ज़रूरत नहीं है. So this is a beautiful practice that we should all incorporate. और तभी हम कहते हैं कि आजकल की जो बीमारियां हो गई हैं, they are primarily lifestyle based diseases. और even जो हम कैंसर की बात करते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, 50% of the cancers can be avoided अगर हम अपनी lifestyle में changes लाते हैं. So yoga is a beautiful method. It's quite efficacious, and it has stood the test of time in harmonizing the body, the mind, and the soul. And so with this, I would thank all of you for listening to me, and thanks Shrestha Kala Sangam and the Hansraj College to give me this opportunity to be with all of you on this beautiful Monday morning. Thank you so much, and please allow me to leave the meeting because I have to go back to the hospital. There's an emergency waiting, but I would earnestly pray to all of you, do get into this practice of yoga. It has got a lot of jewels hidden, and if you experience it, you would just feel close to spirituality. Thank you once again, and thank you so much, everyone.
अपर्णा जी अगर इजाजत हो तो मैं can I just leave the meeting? जरूर मैम आप, लेकिन सॉरी, वेरी सॉरी टू से, एक्चुअली मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया एंड फॉर द होल Okay. प्रेजेंटेशन मैं अवेलेबल नहीं रह पाई, बट आई विल डेफिनेटली वॉच इट ऑन दी वीडियो वी हैव रिकॉर्डेड। बट एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, जो क्योंकि मैं पहले भी आपका लेक्चर सुन चुकी हूँ और मुझे थोड़ा सा आपका प्रोफाइल लेके समझ आया था कि आप वैसे जैसे डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन, एंड लेकिन आपके जिस तरह से विविड इंटरेस्ट हैं, दैट इज टू नाइस ऑफ यू। एंड और आपने आज जैसे योग के विषय में भी जो कहा होगा, जो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि नेक के विषय में आप डॉक्टर हैं, तो जो स्पाइन सर्जरीज हैं, स्कल सर्जरीज हैं, और योग में हम कहते हैं कि किस तरह से अपने आप को स्थिर करके बैठिए, चाहे माइंड को स्थिर करना है, चाहे स्पाइन को स्थिर करना है, तो दैट स्टेबिलिटी अगेन वो हमारा फिजिकल पार्ट है बॉडी का, और उसको हमें उसके ऊपर आपने जरूर बल दिया होगा अपनी प्रेजेंटेशन में। एंड we are really grateful to you and thankful to you for taking out time for this presentation and giving giving us this opportunity to hear a few words from you. So thank you, ma'am. I know you have a busy schedule, so अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बाकी मैं समझती हूँ कि हमारे सभी अटेंडीज आपके लेक्चर से उन्होंने भी कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित किया होगा। So thank you once again. Thank you. And I'm really sorry for my connection. अब मैं अपने पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनकी यदि कोई एक्सपीरियंस रहा लास्ट 15 डेज का, या उनका कुछ सजेशन है, या वो कुछ छोटी मोटी जिज्ञासा रखते हैं, तो हम यहाँ ले सकते हैं। हमारे साथ हमारे दिव्य प्रभा जी हैं, जो कि अपने आप में उन्होंने अभी पूरे योग ग्रंथों का अध्ययन किया हुआ है। तो आप you're welcome, your questions and your suggestions are welcome, and you can share your experience as well. चलिए, इसका मतलब ये है कि किसी में कोई अभी फिलहाल जिज्ञासा नहीं है और कोई सजेशन भी नहीं है, बट आई होप कि हमारे इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के प्रोग्राम्स हम लेकर और जो निश्चित रूप से ज्यादा क्लैरिटी एंड ज्यादा इजी वे में, इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने रखे जाएं। एंड एक्सपीरियंस, अगर if you think you want to share your experience, you can share it on our Facebook pages over these videos which we uploaded from the last 15 days. And moving ahead, there is तपस्विनी जी के लिए देवा मैडम ने लिखा है कि there is a great thing, कि जो तपस्विनी जी ने कहा कि आप अपने आप को खुद ही घर में ही कर सकते हैं, चाहे आपके मन में प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपके मन में कोई क्वेरीज हैं, या मन अस्थिर है, तो वो स्थिति आप अपने आप खुद ही अचीव कर सकते हैं अपने माइंड को शांत करके। तो ये बहुत अच्छी बात आपने दिव्या जी बताई। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं अपने जो हमारा ये जो प्रोग्राम आज का रहा, और इसके लिए जो हमारी जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने उनके जो टेक्निक हमारे साथ जुड़े, स्पेशली मिस्टर रमेश जी और उनकी जी संतोष जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप चैट में दे सकते हैं अपनी बात। नमस्ते मैम। हाँ जी कहिए मैम। जो 15 दिन का जो योगा कार्यक्रम हुआ, इसका अनुभव तो बहुत शानदार रहा और इसके बहुत सारे लाभ भी हुए। सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि जो है सुबह बहुत लेट उठते थे हम लोग, अब जो है सुबह 6 बजे ही उठ जाते हैं
तो सारा दिन ऊर्जावान बने रहते हैं और काम में भी मन लगता है। आलस्य की बीमारी थी पहले, वो दूर हो गई अब। और इसका दूसरा लाभ ये भी हुआ कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हम जो है हमारे परिवार के सदस्यों को भी और दोस्तों को भी सिखाएंगे आगे। और आपने जो इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, उसके लिए आपको तहे दिल से आभार। बहुत ही बढ़िया संतोष जी, और आपने ये बात सही कही क्योंकि हमारे साथ यहाँ बहुत से युवा पीढ़ी के लोग भी जुड़े हैं एंड यंगस्टर्स में जनरली देखा जाता है दे हैव अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड कोरोना इटसेल्फ हम लोगों की जो डेली रूटीन है वो चेंज हो गया बिकॉज वी डोंट हैव टू गो एनीवेयर फॉर वर्क। तो हमारे लेट नाइट सोना, देर से उठना बहुत आम हो गया था, बट इस योगा कैंप के थ्रू हम सभी हमने अपने आप को दोबारा से अपना रीशेड्यूल कर लिया अपनी लाइफ को एंड हम लोग टाइमली उठने लग गए एंड दैट इज वेरी अगेन अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव बाय both the organizations. So moving ahead, any other experience, any other person want to share their experiences? नमस्कार हाँ जी, कहिए। was very great experience और हम दोनों ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही शुक्रगुजार करना चाहते हैं कि एक तो दो चीज़ों का फायदा हुआ। एक तो एक पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी में जो मेंटेनेंस हुआ योग की वजह से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। Thank you to both the organization for organizing this program. Thank you very much. की प्रॉब्लम है और इसकी वजह से आई होप आई एम ऑडिबल नाउ। जी, थैंक यू सो मच कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और हम बिल्कुल आपने ये सही कहा कि बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव रहा दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एंड पिछले लास्ट 15 डेज से जिस तरह हम इस प्रोग्राम में जुड़ गए थे, तो कहीं ना कहीं आज वैलिडिटी के बाद एक मन में वो रहेगा कि हम जैसे होता है ना खालीपन सा, तो खैर ऐसी कोई बात नहीं है। दिस वाज जस्ट अ स्टार्ट एंड वी हैव टू टेक दिस फॉरवर्ड। हमें इसी तरह से अपने आप को, अपनी हैबिट्स को इसी तरह से वो रखना है कि हम नियंत्रित रहें और सुबह उठें और योगा अभ्यास जो हमने सीखा है या जो हमने लेक्चर सीरीज के थ्रू जो ज्ञान हमने अर्जित किया है, हम उसको ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में उसको आगे लेके चलें। तो इसी के साथ में दोनों टेक्निकल टीम्स जो हमारे हंसराज कॉलेज की रही, जिसके हेड अमित चौहान जी हैं, और हमारे श्रेष्ठ कला संगम की जो पीआर टीम है, एडवाइजरी कमेटी है, बोर्ड मेंबर्स हैं, मीडिया टीम है, टेक्निकल टीम है, उन सभी के प्रति मैं धन्यवाद करती हूँ कि ये प्रोग्राम सफल बनाने में उनका बहुत बहुत योगदान रहा। And it is again a great initiative by both the organizations through this new platform, trying to reach out as many as youth and senior citizens, as this program was live on Facebook pages of both the organizations. And ये बहुत ही अच्छी हमारे लिए रहा कि हम बाद में भी इन लेक्चर सीरीज को अगर देखना चाहें, और जैसे कि दिव्य प्रभा जी ने इतने सारे उपनिषदिक हमारे साथ थॉट्स शेयर किए, या तपस्विनी जी के जो थॉट्स हैं, और तो वो सब पीपीटीज हमारे पास वहां उपलब्ध रहेंगी। अगर in case anybody likes to have more knowledge on these things, so they can anytime they can share these, they can view those videos. So thank you again all our guests, all our attendees जो हमारे साथ लास्ट 15 डेज से जुड़े। हमारे जो बलदेवानंद सागर जी हैं, प्रोफेसर रमा मैडम हैं, उनके प्रति भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में हमें उनका जो मार्गदर्शन रहा उसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। हमारे स्पीकर्स जितने रहे इन लेक्चर सीरीज के दौरान, हमारे योगा कैंप के दौरान, उन सबके प्रति वी आर वेरी मच ग्रेटफुल एंड वी आर पेइंग आवर ग्रैटिट्यूड टू देम।
So thank you all on behalf of both the organizations. And last, I just want to say कि be healthy and stay active. यही हमारा मेन मोटो होना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा हेल्दी बन के रहना है, एक्टिव रहना है, मानसिक रूप से, मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली. तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. और जैसा मैं हमेशा करती हूँ लास्ट में, मंगल कामना आप सबके लिए कि आप सब स्वस्थ रहें और आप अपने जीवन को कल्याणकारी बनाएं. लेकिन आज मैं साथ में ये भी कहूंगी कि हमारे आसपास का भी जो सराउंडिंग्स हैं वो भी उतनी ही शांति प्रिय होनी चाहिए. और इसी कामना के साथ मैं कहती हूँ, ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेवः शांति सामा शांतिरेधि. ओम शांति शांति शांति. ओम. धन्यवाद मैम.